Good morning, guys. Today I'll start with the next question in shares, illustration number 59. A limited company issued a prospectus inviting application for 2 lakh shares of 10 each at a premium of 2 per share and application 3 allotment 4 including premium 3 of first call and 2 of the second call. Application received for 3 lakh share and allotment was made on the pro rata basis. Now it is not mentioned to whom how much share is to be allotted. So you just consider to the applicants of 3 lakh shares we issued 2 lakh shares. So it is a proportion of pro rata. R to whom 400 shares were allotted failed to pay the allotment money, his shares were forfeited. He has subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. And the holder of 600 shares failed to pay the 2 calls and his shares were forfeited after the second call. So here in this question there are 2 times of share forfeiture. One is after the first call and the second one is after the second call. Of the shares forfeited, 800 shares were sold to KS fully paid, being rupee 9 per share, the whole of R share. This topic is new here that I told you after doing the question. So just start with this कि कंपनी ने इशू किए थे 2 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 3 लाख शेयर्स की. एप्लीकेशन इज़ 3434 including premium of rupee 2. So I am doing the question directly without the table. The entry is bank account debit 2 share application. 3 lakh application into rupee 3, 9 lakh, 9 lakh. Second entry is share application 2 share capital 9 lakh, 9 lakh. Second entry allotment को ड्यू करने की. Share allotment 2 share capital and allotment include securities premium. 3 lakh shares के ऊपर 4 rupees की allotment है. We do the entry by the issued share. The issued shares are 2 lakh. 4 rupees की allotment है is 8 lakh. 2 का premium है और 2 की ही share capital है. Next, receive the allotment. Bank account debit 2 share allotment. Now it is mentioned R to whom 400 shares were allotted. So here 400 allotted shares are mentioned. You have to find out the applied ones. As per the pro rata proportion, 3 lakh are the applied and 2 lakhs are the allotted into 400. Means the person who applied for 600 shares, we allot him 400 shares. Then what you have to do is the difference of these two multiplied with the application money. It is rupees 600. This is the excess money. And he not paid on allotted shares the amount of allotment. 1600 और 600 का डिफरेंस, और अल्टीमेटली उसने 1000 रुपये का किया अरियर. 8 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट से ड्यू हुए थे. जो एप्लीकेशन है उसमें हमें एक्सेस मनी को एडजस्ट करना था. सो यहाँ पर लिखना था 2 शेयर अलॉटमेंट. द एप्लीकेशन इज़ 2 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन थी. एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल होगा 6 लाख, तो 3 लाख हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट से. नाउ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 8 लाख के अलॉटमेंट में से 3 लाख रुपीज़ आपको पहले ही रिसीव हो चुके हैं. तो इट मीन्स हमें मिलेंगे 5 लाख, और 5 लाख में से 1000 का डिफ़ॉल्ट है, मीन्स अरियर है. सो यू विल गेट नाउ 499. आफ्टर दिस ड्यू द फर्स्ट कॉल, बिकॉज शेयर फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा 2 शेयर कैपिटल. द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड आर 2 लाख एंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल इज़ 3. So it is 6 lakh, 6 lakh. Receive the first call. Bank to share first call. अब 2 शेयर होल्डर हैं. वन इज़ आर जिसने 400 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट पे नहीं की थी. द सेकेंड इज़ एम जिसने 600 शेयर्स के ऊपर दोनों कॉल्स पे नहीं की. तो फर्स्ट कॉल का अरियर कितना हुआ? 1000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़, मीन्स 3000. तो 6 लाख में से 3000 नहीं आए. We will receive 5,97,000. Now forfeit the share after the first call. R के शेयर्स को फॉरफिट किया गया. शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पर इशू किए थे, अलॉटमेंट का अरियर था, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम फॉरफीचर पर हो जाएगा डेबिट. 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर. हम सिर्फ 400 R के शेयर्स फॉरफिट करें. दिस इज़ द फॉरफीचर ऑफ R शेयर्स. 400 शेयर्स. अभी सेकेंड कॉल आई नहीं है, तो अप टू द फर्स्ट कॉल द शेयर इज़ ऑफ रुपी 2 लेस करके 8 रुपीज़ का. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है आपका 2 का. अलॉटमेंट का अरियर हुआ था 1000.
400 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल का आरियर है 3 रुपीज़ का, मीन्स 1200, द बैलेंस इज 1800। डेबिट में से ये माइनस करेंगे तो 1800 का बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट यू नीड टू फर्स्टली ड्यू द सेकेंड कॉल। द सेकेंड कॉल इज ऑफ ₹2 per share. So due the second call, share second call debit to share capital. अब हमने इशू किए थे 2 लाख शेयर्स, उसमें से आप फॉरफिट कर चुके हो 400 शेयर्स। तो मार्केट में है 1,99,600 शेयर्स, जिसके ऊपर आपको 2 रुपीज़ की सेकेंड कॉल ड्यू करनी है। इट इज़ 3,99,200. Now receive the second call. बैंक डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। नाउ इट इज़ मेंशन कि एम के पास 600 शेयर थे जिसने 2 रुपीज़ की सेकेंड कॉल पे नहीं की, मीन्स उसने 1200 का अरियर किया। 399,200 में से 1200 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 398,000। अब एम के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट। एम के शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का दोनों का अरियर था, तो शेयर्स फॉर फ्यूचर में दोनों होंगी। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम नहीं होगा बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के अरियर पर शो होता। नाउ दिस इज एम शेयर्स फॉर फ्यूचर। 600 शेयर्स पर अब शेयर है पूरा 10 रुपीज़ का। अरियर हुआ था 3 की फर्स्ट कॉल का, 2 की सेकेंड कॉल का, एंड द बैलेंस इज ऑफ ₹3,000 मीन 600 into 5। नेक्स्ट यू हैव टू री इशू बैंक अकाउंट डेबिट। एज पर द री इशू इट इज़ मैंशन कि आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 800 शेयर्स हमने री इशू किए 9 रुपीज़ में। 10 का शेयर 9 में, बैंक डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 800 शेयर से 10 का रिसीव हुए 9, 1 का हो गया शेयर फॉर फ्यूचर। नाउ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। नाउ दिस इज़ द न्यू टर्म जो आपको ध्यान से सुननी है। उसने कहा है जितने भी शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे उसमें से आर के सभी शेयर्स हमने री इशू कर दिए। आर के हमने शेयर्स फॉरफिट किए थे 400 और एम के हमने फॉरफिट किए थे 600। इट मीन्स हमने टोटल फॉरफीचर किया था 1000 शेयर्स का, बट हमने सिर्फ री इशू, ये थे फॉरफिटेड शेयर्स, हमने री इशू किए हैं 800 शेयर, जिसमें से आर के सभी शेयर्स को री इशू कर दिया गया। मीन्स 800 में से 400 तो आर के हैं, तो बाकी 400 किसके हैं, एम के हैं। कितने में से, 600 में से 400। तो यहाँ पर जो आर के शेयर का फॉरफीचर है वो पूरा यूज़ होगा क्योंकि वो हमने फुल री इशू कर दिए। द फॉरफीचर ऑफ आर शेयर इज एज पर द क्वेश्चन 1800, सो वी विल यूज़ दिस वन कम्प्लीटली। एम के शेयर का फॉरफीचर अभी फुल यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें इक्वेशन लगानी होगी। एम के शेयर का फॉरफीचर जैसे आप लगाते हैं 3000 शेयर फॉरफीचर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर 600, और एम के हमने कितने री इशू किए, जस्ट ₹400, जस्ट ओनली 400 शेयर्स। सो द फॉरफीचर ऑफ एम इज़ 2000। इट मीन्स 2000 इसका, 1800 इसका। टोटल शेयर फॉरफीचर कितना यूज़ होगा, 3800। उसमें से हमने डेबिट में माइनस किया 800, सो द बैलेंस ऑफ सी आर इज ₹3000 which you have to transfer to the capital reserve. So this is the new term in this question. Look at one more question, 61. Just one thing I want to tell you, इससे आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो totally same as it is, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, कुछ भी अलग डिफरेंट आगे नहीं है। एंड वन मोर थिंग, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट मैं कहना चाहूँगी कि हमारे शेयर्स के टॉपिक में से बोर्ड में नहीं आते। एंड दिस टाइम तो ऑल्सो द पेपर आई थिंक एंड आई होप पेपर का जो पैटर्न होगा काफ़ी लीनियंट होगा। सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर से रिलेटेड जो हमारा इंट्रो है अप टू 61 या यू कैन से अप टू 65 क्वेश्चंस आर वेरी मच इनफ फॉर यू। बाकी इट्स योर चॉइस कि आप लास्ट तक करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट एज़ पर माई थाट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट शेयर्स में नहीं आएगा। डेफिनेटली शेयर्स का क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आता है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक के क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, तो आप लोग इतने कर लेंगे तो भी आप लोगों के लिए सफिशेंट होगा। Look at this one. Anshika Limited invited application for 2 lakh shares of ₹10 each at a premium of 4. Application 6 including 2 premium, allotment 7 including 2 premium, balance on the first call. तो शेयर है 10 + 4 करके 14 का,
यहाँ पर आपने 7 और 6 13 रुपीज़ रिसीव कर लिए हैं, तो इट मीन्स बैलेंस इज ऑफ ₹1 on the first call which we received after some time. Application for 3 lakh shares were received, allotment based on the pro rata. 3 lakh वाले को 2 lakh allot किए. महक को 400 shares allot किए थे. She failed to pay the allotment and call money. Khushbu, who applied for 300 shares, failed to pay the call money, and her share were forfeited after the final call. 400 of the forfeited shares, including all the shares of Khushbu, reissued at ₹8 per share. So look at this one. ये भी उसी तरह से है आपका. We issued 2 lakh shares. Application received for 3 lakh shares. 6, 7, 1. 2 का प्रीमियम, 2 का प्रीमियम. तो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. 3 lakh shares, 6 रुपीज़ की एप्लीकेशन, 18. ड्यू कीजिए शेयर एप्लीकेशन, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, excess money adjusted towards the allotment. 18 lakh. 2 lakh शेयर्स हैं आपकी. 6 को हटा, 6 टोटल प्रीमियम है. इट मीन्स 4 रुपीज़ की आपकी एप्लीकेशन है. सो 2 into 4 8 lakh. 2 रुपीज़ का प्रीमियम है. 2 into 2 4 lakh. रेस्ट वी विल एडजस्ट थ्रू द अलॉटमेंट. ये आप टेबल से बना सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया है. शेयर अलॉटमेंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, एंड दिस इंक्लूड्स द प्रीमियम ऑल्सो. सिक्योरिटीज प्रीमियम. 2 lakh issued शेयर, 7 रुपीज़ की अलॉटमेंट, 14. 2 पर 2 रुपीज़ का प्रीमियम, 4 lakh, एंड द रेस्ट इज 10 lakh. रिसीव द अलॉटमेंट. बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. Now find out, it is 400 shares allotted. Find out the applied one. 3 lakh divided by 2 lakh into 400. So it is 600 applied. Applied or allotted का difference multiplied by the application money. This is excess money. तो ये आ गया 1200. एंड ऑन 400 शी नॉट पेड द अलॉटमेंट ऑफ 7. इट इज़ 2800. 2800 माइनस 1200, सो अल्टीमेटली 1600 का अरियर है. 14 लाख में से 6 लाख आप पहले ही रिसीव कर चुके हैं अलॉटमेंट में से, तो 8 लाख में से 1600 नहीं आए, आपने रिसीव किए 7,98,400. नेक्स्ट इज ड्यू द फर्स्ट कॉल. Share first call, 2 share capital. The first call is of ₹1 on 2 lakh shares. Received the first call. Bank debit, 2 share first call. Now it is mentioned कि 1 महक ने 400 शेयर्स पर अलॉटमेंट और कॉल्स पे नहीं की थी. खुशबू ने अप्लाई किया था 300 शेयर्स को, उसको कॉल मनी उसने पे नहीं की. अब वन मोर थिंग, महक के थे 400 शेयर्स और खुशबू के थे 300 अप्लाइड शेयर्स. तो डेफिनेटली जिसने उसने अप्लाई किए थे उस पर तो वो पैसा पे नहीं करेगी, तो हमें यहाँ पर उसके अलॉटेड शेयर्स निकालने होंगे. एज पर pro rata proportion 2 lakh इज़ द अलॉटेड डिवाइडेड बाय अप्लाइड इनटू अप्लाइड. सो हमने उसको अलॉट किए थे 200 शेयर्स. तो अलॉटेड शेयर्स पर ही खुशबू अलॉटमेंट का अरियर करेगी, सॉरी फर्स्ट कॉल का अरियर करेगी, विच इज़ ₹200. तो 200 खुशबू के शेयर्स और 400 हो गए महक के शेयर, जिसके ऊपर 1 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल नहीं आई. 2 लाख में से अल्टीमेटली 600 रुपीज़ नहीं आए. यू रिसीव 199,400. देन फॉरफिट द शेयर्स ऑफ खुशबू एंड महक. द एंट्री फॉर द forfeiture. शेयर कैपिटल डेबिट. सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेफिनेटली डेबिट होगा क्योंकि अलॉटमेंट का अरियर हुआ था खुशबू के शेयर्स पर, महक के शेयर्स पर. 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर फॉरफीचर. अब टोटल हमने शेयर्स फॉरफिट किए हैं 400 महक के, 200 खुशबू के, 600 शेयर्स, 10 रुपीज़ का ईच. सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ महक के शेयर पर डेबिट होगा क्योंकि खुशबू के शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का अरियर था. नेक्स्ट अलॉटमेंट का अरियर हमने निकाला था यहाँ पर 1600. फर्स्ट कॉल का अरियर था 600. सो द रेस्ट अमाउंट इज़ 4600. Out of these, 400 shares were issued as ₹8 as fully paid. Bank debit, share forfeiture debit, 2 share capital. 400 as fully paid means 10. 8 बैंक में गया, 2 गया आपका forfeiture. Last में share forfeiture to CR. They said the whole of खुशबू were reissued. खुशबू के शेयर्स को री इशू कर दिया गया. खुशबू के कितने थे? 200 शेयर्स थे. टोटल हमने री इशू किए हैं 400 आउट ऑफ
600 में से हमने 400 री इशू किए हैं, तो 200 तो खुशबू के शेयर्स को कम्प्लीटली री इशू कर दिया गया। इट मीन्स 200 हमने महक के री इशू किए। अब आपको निकालना होगा खुशबू के शेयर्स पर और महक के शेयर्स का शेयर फॉर फीचर कितना था। सो फर्स्टली फाइंड आउट द शेयर फॉर फीचर ऑफ खुशबू एंड महक शेयर इंडिविजुअली। महक के शेयर्स का फॉर फीचर फाइंड आउट करने के लिए आपको रफ वर्क में इंडिविजुअल महक के शेयर्स को फॉरफिट करना होगा। हाउ? शेयर कैपिटल डेबिट महक के शेयर से 400, 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग फॉर फीचर में 4000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम महक का 400 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ बिकॉज शी मेड द अरियर ऑफ अलॉटमेंट, तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को डेबिट करेंगे। अलॉटमेंट का अरियर हुआ था 1600, फर्स्ट कॉल का 400 शेयर्स पर अरियर था 1 रुपीज़ का, द बैलेंस इज 2800 जो शेयर फॉर फीचर में जाएगा। तो महक के शेयर्स को हमने 2800 के शेयर फॉर फीचर में से सिर्फ हमने 400 शेयर्स में से 200 शेयर्स री इशू किए हैं, तो महक का हम शेयर फॉर फीचर यूज़ करेंगे 1400 शेयर्स। अब महक का शेयर फॉर फीचर 2800 था और टोटल फॉर फीचर 4600 था। इट मीन्स खुशबू का शेयर फॉर फीचर महक का हम यूज़ करेंगे 1400 और आपके 4600 में से 2800 महक का निकालने के बाद आपका खुशबू का शेयर फॉर फीचर था 1800। इट इज़ 3200। इसमें से आपने 800 यूज़ कर लिया, तो रेस्ट अमाउंट ऑफ 2400 विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। वंस मोर, महक के शेयर्स का फॉर फीचर मैंने अलग से रफ वर्क में किया सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ से हमारा महक का फॉर फीचर का बैलेंस आया 2800, उसके 400 में से सिर्फ 200 री इशू हुए हैं, उसका यूज़ करेंगे हम 1400। टोटल फॉर फीचर था 4600 जिसमें से सिर्फ 2800 महक का है, तो बाकी खुशबू का कितना 1800। खुशबू का फुल यूज़ होगा, महक का 1400 यूज़ होगा। 3200 में से जो हमने डेबिट कर दिया उसको माइनस करेंगे, द अमाउंट इज़ शेयर फॉर फीचर टू CR 2400. So from my side up to 65 questions are enough for you in the shares, and if you have any doubt you can ask to me and try to complete the chapter क्योंकि इतने questions as I said again are very much enough for you क्योंकि shares में इतने ज़्यादा complicated questions नहीं आते। अप टू मैक्सिमम जो हमने ये अलॉटेड अप्लाइड का स्टार्टिंग का टॉपिक किया 55, 56, 57 मैक्सिमम इतने तक ही क्वेश्चन आते हैं अब तक का जो भी पास रिकॉर्ड है। और इस टाइम तो वैसे भी पेपर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर पेपर आई थॉट इट विल बी ईजी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। सो ट्राई टू सॉर्ट आउट द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।